Every day, millions share bits of their lives on social media. But how much are we really sharing without knowing? In the last year alone, over 10 million people fell victim to online privacy breaches. Could you be next? From birthdays to vacation plans, the little details can make you a target. Let's see how easily privacy can slip through our fingers. Use strong, unique passwords. Think twice before you accept that friend request. Keep your profiles private. It's not just about losing friends or followers. Poor social media privacy can lead to real-world consequences. Protecting your privacy starts with you. Follow along as we tighten up security settings on major social networks. Remember, in the digital world, your privacy is in your hands. Think before you share. सोशल मीडिया एक नाम जो है कि हम सबने सुना है, एक नाम जिसके साथ हम बहुत बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर एंड व्हाट नॉट। सोशल मीडिया इज़ लाइक अ वेरी, वेरी एक्सपैंडेड इंडस्ट्री और इंडस्ट्री हर दिन ग्रो कर ही रही है। लेकिन विद दिस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, प्राइवेसी कंसर्न इज़ समथिंग जो और भी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आई एम श्योर प्राइवेसी आई गेस हम सबको बहुत प्यारी होगी। किसी को नहीं पसंद कि कोई उसकी प्राइवेसी इन्वेड करे। मुझे भी नहीं पसंद एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद नहीं होगा। लेकिन क्या हो ये प्राइवेसी जो आपको इतनी ज़्यादा प्यारी है, ये आपके पास रहे ही ना। Hello and welcome to the channel of Quest Seekers, where we seek answers to the questions we have and provide you with the answers of the questions you have. In this video, we will be highlighting the topic privacy concerns in the age of social media, which will be further highlighting different subtopics such as data collection, cybersecurity, and much more that you will see in the following video. We share a lot of information on our social media, such as which school or college we studying, what are our hobbies, and how we basically spend our weekends, and many more. Do you really think that social media saves this data? Oh, yes, of course, I think social media saves this data to a large extent. What do you think that social media do with this data? Firstly, they would prioritize your ad. The ads you see on Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, all are personalized and are based on your interest. Secondly, the most important use they would do is personalize your feed, suggestions, posts, friends, group. They use this data so that your feeds become personalized and you spend most of the time on their app, helping them directly or indirectly. And third, and I would say this is the most important, that they share their data to the third party. Okay. Isn't it wrong to share the data of people like that and moreover give them this permission? वैसे तो इट इज बहुत ज्यादा रॉन्ग कि हमें डाटा ऐसे शेयर होता है थर्ड पार्टी के उसमें, बट एट द एंड ऑफ द डे हम ही वो लोग होते हैं जो उन्हें परमिशन देते हैं। हम एक ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें ना जब भी अगर हमें उसके थोड़े से छोटे फीचर को एक्सेस करना है तो हमें उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। एटलीस्ट इट होल्ड्स 4 to 5 पेज एंड वो भी बहुत छोटे छोटे लिखे होते हैं। तो अगर हमको पेपर प्रिंटेड करे तो इट वुड एटलीस्ट 10 पेजेस, तो हम वो रीड नहीं करते, हम जस्ट उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन में ये ब्रीफ होता है कि हम आपका डाटा शेयर करेंगे एंड ऑल जो फैक्टर्स होते हैं वो लिखे होते हैं। तो मोस्टली मैं खुद भी नहीं रीड करती हूँ टर्म्स एंड कंडीशन को, बट ये सजेस्टेड है कि उन्हें रीड करना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे लिए यूजफुल है। तुम कोई नहीं चाहता कि तुम उनका डाटा इस एक्सटेंट तक शेयर हो जितना आज की डेट में हो रहा है, तो उन्हें रीड करना सजेस्टेड। Thank you for your interest. As you just mentioned that social media might sell our data to a third party, can you justify this? I will explain this with an example. For example, you want to buy a shoe. You scroll down Amazon looking for a specific type, specific color, specific size. You scroll and scroll and scroll, and after some time you close the app. If after few minutes you open another platform, another social media platform, let's take Instagram. You would most definitely would see either a reel, post, or other suggestions, ads, or even accounts based on like shoes related. So this is how like they share the data. The data from Amazon is transferred to Instagram. So and that is how they like they manipulate this data to the third party. Cybersecurity risk refers to the potential threats that can harm computers, networks, or data.
These risks include hackers into breaking into systems to steal information, virus that damage files or software, and phishing scams where fake emails trick people into revealing passwords or personal details. Cybersecurity risk can affect individuals, businessmen, and governments. With more activities happening online, these risks are becoming more common. And it's important to take steps like using strong passwords and keeping software updated to protect against them. For example, an employee might receive an email that looks like it's from their company's IT department, asking them to click on a link and enter their login IDs to verify their account. If employee falls for the scam and enters their information, the attacker can use these credentials to access company system, leading to potential data breaches, financial loss, or even ransom act. Thank you. Is it necessary to have an account in social media? आपका क्या opinion है इस पे? ओके सो मुझे लगता है कि इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल यू कम्युनिकेट विद सो बेसिकली अगर आप 5 से 6 लोगों के साथ बात कर रहे हो दिन में और आपको किसी और के साथ टाइज नहीं रखनी है तो आई थिंक सोशल मीडिया अकाउंट इज नॉट दैट नेसेसरी बट गोइंग बैक अगर आपको अपने पुराने दोस्तों के साथ मेमोरीज रिकनेक्ट करनी है तो आप सोशल मीडिया पे जाके उनके अकाउंट्स देख सकते हो उनको टैग कर सकते हो उनसे बातें कर सकते हो जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स यूज्ड टू डू विद फेसबुक So I think it's not a necessity to make social media like an account on social media, but however, बस एक communication को break off ना करने के लिए मुझे लगता है ये account बनाना चाहिए. So that's what I think. Being youngsters, everyone has an account on social media. Do you also have an account? Yes, I have an account on Instagram and Facebook. क्या आपका अकाउंट पब्लिक है या प्राइवेट? मेरा पब्लिक है बिकॉज आई अपलोड कंटेंट रिलेटेड टू म्यूजिक on both of my pages. तो एडवांटेजेस क्या है अकाउंट पब्लिक होने के? मैम पब्लिक होने की बहुत सारी एडवांटेजेस है बेसिकली आप अपने पैशन को अपलोड करते हो इंटरनेट पर सब लोग देखते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है वो ड्राइव करती है अपने टैलेंट को अपना और एक्सप्लोर करने की और ऑल्सो आपको वेल कनेक्टेड पीपल मिलते हैं हु आर बेसिकली नियर टू द इंडस्ट्री दैट इज लाइक तो आप बहुत सारे लोगों को ऑल अराउंड वर्ल्ड कनेक्ट कर सकते हो एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एनवायरनमेंट तो पब्लिक अकाउंट के इतने फायदे मुझे लगते हैं. Since you have a public account on social media, what kind of information you should avoid sharing on social media? So I always tend to avoid sharing any of the addresses of people whom they are and from. So when कोई मुझे information को track ना कर पाए, मेरी life story would have mostly my content online. So that is the best point that I always follow while posting anything on social media. And I also avoid tagging the people who have a private account. ताकि उनकी प्राइवेसी में कोई इन्वेजन ना आए. So that's what I always avoid people. Thank you, Nishita, for your time. It was a nice interview. टीनेजर जिसे प्राइवेसी बहुत प्यारी है एंड अनदर पेरेंट्स जिसे टीनेजर की प्राइवेसी बहुत प्यारी है. ट्रैजिक राइट बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है. जब भी एक बच्चा एक टीनेज एज में एंटर करता है तो उसे प्राइवेसी बहुत मीठी मीठी सी लगती है. देयर लाइक कि हमारे रूम में कोई परमिशन के बिना एंटर नहीं करेगा, हमारा फ़ोन कोई चेक नहीं करेगा, कोई चैट्स नहीं पढ़ेगा, इंस्टाग्राम नहीं चेक करेगा, स्नैपचैट एंड बहुत सारी चीज़ें. व्हेयरएज़ जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बच्चों के लिए इस एज में आके. और क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इस एज में आके ही बिगड़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ये जो चीज़ होती है ना, ये पूरे टॉपिक को जो टीनेज प्राइवेसी का टॉपिक है, ये 2 हिस्सों में बाँट देती है. एक बच्चों की ओपिनियन एंड एक पेरेंट की ओपिनियन. एंड इस वीडियो में हम दोनों कवर करेंगे कि व्हाट अ पेरेंट थिंक अबाउट दिस प्राइवेसी इश्यू एंड व्हाट अ टीनेजर थिंक अबाउट दिस प्राइवेसी इश्यू. मोस्टली टीनेजर्स को प्राइवेसी चाहिए होती है बट उन्हें मिलती नहीं है. लो तो यू बीइंग अ टीनेजर योरसेल्फ डू यू फील कि आपको प्राइवेसी नहीं मिलती है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है कि 2 तरह की प्राइवेसी होती है। एक होती है पर्सनल लाइफ प्राइवेसी, एक होती है
घर पे जो हमें प्राइवेसी चाहिए होती है। तो अगर देखा जाए तो घर पे तो मिलती नहीं, क्योंकि जैसे आप कुछ करने बैठते हो या आपको कुछ काम होता है अपना, या आप फोन भी चलाने बैठते हो, सबसे पहले घर वाले क्या बोलते हैं एज अ टीनेजर की, पढ़ लो जाके, ये कर लो वो कर लो, काम घर का कुछ काम नहीं करवाते, ये नहीं करवाते। कुछ करने बैठो एकदम से तुम्हारे घर वाले तुम्हें उठा देते हैं। और जहां तक रही पर्सनल लाइफ की बात, अगर आप घर से बाहर भी जा रहे हो, आप जैसे ही घर से बाहर निकले घर वाले आपको टोक देते हैं, क्यों बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है, बाहर से आया, मैं आज खाना नहीं खा रहा, मैं आज घर से बाहर से खा के आया हूँ, किसके साथ गया, क्यों गया। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो घर वाले पीछे ही पड़ जाते हैं, मतलब पूछते ही रहते हैं। सो बीइंग अ टीनेजर कई बार ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चंस का कोई मतलब ही नहीं है, मन ही नहीं करता आंसर देने का। तो नहीं, पर्सनल लाइफ प्राइवेसी तो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है घर पे, फैमिली वाले प्राइवेसी नहीं देते। इसमें सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या बनती है कि जो पर्सनल प्राइवेसी है या फिर जो घर वाली प्राइवेसी है? मेनली पर्सनल प्राइवेसी ज्यादा दिक्कत देती है, क्योंकि अगर आप देखो किसी से फोन पे बात भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो साथ ही आपके घर वाले पूछते हैं कि किससे बात कर रहा है, इतनी देर से बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है। घर वाले शक बहुत करते हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। कि उनको अपने अब बच्चे उनके हैं तो उनको कम से कम भरोसा तो होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, गलत नहीं कर रहे होंगे। तो वो चीज घर वालों में होनी चाहिए, बट नहीं मिलती वो आजकल, क्या बताएं। ओके। अब जैसे आप अपना टीनेजर कंप्लीट करने ही वाले हैं बिल्कुल ही, यू आर गोइंग टू बी 19 सून, यस। एंड इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास टीनेज का, तो आप कुछ एडवाइस शेयर करना चाहेंगे दूसरे या टीनेज के हाँ, लिए? मेरे पास कुछ एडवाइसेस हैं। एक तो कि सबसे पहली बात तो जैसा आपके घर वाले, आपकी टीनेज चल रही है, आपकी जो फैमिली है, आपके जो घर वाले हैं वो इसी एज से गए हैं, तो वो जो बोलते हैं आपके भले के लिए ही बोलते हैं। तो बीइंग अ टीनेजर तो आपको हर वक्त नहीं कह रहा मैं क्योंकि मैं भी टीनेजर हूँ, तो आपको कभी कभी उनकी बात सुन लेनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं होता अगर आप घर वालों की एक बात मान लोगे तो आपको कुछ बिगड़ जाएगा, वो आपके भले के बारे में ही सोचते हैं। तो एक और चीज है कि नंबर ले आओ, मार्क्स ले आओ, मार्क्स बहुत जरूरी है। आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, गुड मार्क्स लेके आएंगे, तो आपके घर वाले आपसे ऐसे ही खुश हो जाएंगे। तो बीइंग अ टीनेजर मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि जब तक आपकी कुछ बन नहीं जाते, या आप टीनेज एज पार नहीं कर लेते, या आपके मतलब खुद आप कुछ करने नहीं लग जाते, तो तब तक तो आपको घर वालों की बात माननी चाहिए बीइंग अ टीनेजर। तो ये मेरी जरूरी एडवाइस है। ओके, थैंक यू। जब एक बच्चा टीनेज एज में एंटर करता है तो उसे ना प्राइवेसी चाहिए होती है, वेयरएज जब पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे सब कुछ शेयर करे, कि वो किसके साथ दोस्त है, को किस इंसान से वो बात करता है, जिनके साथ वो बाहर घूमने जाता है, एंड और भी बहुत सारी चीजें। तो इसकी वजह से ना एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि टीनेज को शेयर करना नहीं पसंद और पेरेंट्स सब कुछ जानना चाहते हैं। तो यू योर सेल्फ बीइंग अ मॉम ऑफ अ टीनेजर, इसमें आपके क्या ओपिनियन है? नो डाउट टीनेज एज में बच्चा प्राइवेसी चाहता है और पेरेंट्स चाहते हैं हमें अपने बच्चे की फुल इंफॉर्मेशन हो कि वो कैसा कंटेंट मोबाइल पे देख रहा है, किसके साथ जा रहा है दोस्तों से, कौन उसके दोस्त हैं, एक्सेट्रा। देन इस सिचुएशन को, ये वॉर लाइक सिचुएशन होती है, आई थिंक हर घर में होती है। जब बच्चा टीनेज में एंटर करता है वो आगे से बोलता भी है, मम्मा आप हर टाइम, मेरा खुद का है बच्चा बोलेगा आप हर टाइम इधर देखते हो। लेकिन इसको हैंडल किया जा सकता है बच्चे के साथ एक फ्रेंडशिप जैसा रिलेशन रख के। बच्चे को हर टाइम उसके मुंह पे मत बार बार टोको, जब वो देख रहा है ध्यान रखो, लेकिन जब वो इधर उधर होता है तब उसका ध्यान भी रखो कि वो किस तरह का कंटेंट देख रहा है। तो इस तरह से एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, और अगर वो बैलेंस हम बना लेंगे पेरेंट्स, तो आई थिंक इस सिचुएशन को इजीली हैंडल किया जा सकता है। ओके, यू योर सेल्फ आर अ मॉम, इज अ मॉम ऑफ अ टीनेजर, आपका बच्चा भी अभी टीनेजर में एंटर कर चुका है, तो आप कैसे सिचुएशन को टैकल करते हैं? मतलब दूसरे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें? मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि जब बच्चा कर रहा है उसको हर टाइम मत टोको। सपोज करो उसने मोबाइल उठाया देखने के लिए, उसको हर टाइम मत टोको आप। लेकिन जब बच्चा नहीं है तो उसका ध्यान भी रखो, प्यार से बात करो, उसे प्यार से समझाओ। अगर आपको लगता भी है कई बार कि यहाँ वो गलत है, लेकिन उसको कोई एग्जाम्पल देके डायरेक्ट उसको मत बोलो। डायरेक्ट बोलोगे कई बार बच्चा, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बच्चे के माइंड पे प्रेशर होता है इस एज में, नो डाउट, एवरीबॉडी नोज दैट। तो हमें प्यार से ही उसके साथ हैंडल करना है, बात करनी है, कुछ चीजें उसको एग्जाम्पल से समझानी है कि ऐसा नहीं करते, ऐसा जो करते हैं ये, और का एग्जाम्पल देके डायरेक्ट उसे मत बोलो। कई बार तो बच्चा वापस बोल देगा आप मुझे कहना चाहते हो,
लेकिन ये सिचुएशन मैं हैंडल ऐसे ही करती हूँ, बच्चे को समझाना पड़ता है कि नहीं ऐसा होता है। इवन कई बार तो ऐसे भी बोलना पड़ता है, हमें भी ऐसे ही लगता था, बट पेरेंट्स कभी किसी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते। तो ये बैलेंस ऐसे ही बनेगा कि उसकी कोई एक्टिविटी इग्नोर भी मत करो अगर आपको लग रहा है। लेकिन अगर मोबाइल का एग्जांपल मैं देती हूँ, मोबाइल में अगर वो कुछ देख रहा है, आपको देख के उसकी उँगलियाँ ज़्यादा चल रही हैं, मुझे शक हो जाता है, तो मैं कंटेंट चेक करती हूँ कि उसने कैसा कंटेंट चेक किया है, क्या उसने सर्च किया है, तो ये सब मैं ध्यान रखती हूँ। तो इस तरह से बैलेंस बनाया जा सकता है कि बच्चे को भी ना लगे कि मॉम डैडी ने स्ट्रिक्ट हैं, मेरे दुश्मन हैं, ये भी ना लगे, बट उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते कि हमने तो उसको ओवरऑल देखना है ना कि वो किस तरह राइट पाथ पे जाए बस हमारा। ओके, इट वाज नाइस कि आपको इतना कुछ पता है और अपने बच्चे पे इतना लाइक कंट्रोल भी रखते हैं, बट एट द सेम टाइम उसको फ्रीडम भी प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली पेरेंट्स इस चीज को बैलेंस नहीं कर पाते, एंड आई गेस सब पेरेंट्स कंसीडर करेंगे आपकी एडवाइस एंड इसे। वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आजकल हर एक पर्सन जो है सोशल मीडिया पे है ही, और फिर वो सोचते हैं कि यार मेरे को ये स्कैम रिलेटेड कॉल्स कहाँ से आ रही हैं, हमसे लोन ले लो, हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, आप हमसे शॉपिंग कर लो, आपको 20-30% ऑफ मिलेगा। फिर वो सोचते हैं हमें ये सब कॉल्स क्यों आ रही हैं। बट द थिंग इज, जब भी वो किसी न किसी ऑनलाइन साइट्स पे या सोशल मीडिया पे अपनी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी अपलोड करते हैं, जैसे कि वो बता देते हैं कि आज हम इस लोकेशन पे गए थे, तो उसके आसपास की जो भी लोकेशंस होती हैं उनको, वहां पे जो हैकर्स बैठे होते हैं उनको पता लग जाता है कि यहाँ एक पर्सन है जो यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे, यहाँ पे किसी कैफे को उसने विजिट करा। तो उस पर्सन को, जिस बंदे ने विजिट करा है, उसके इंटरेस्ट वगैरह के बारे में पता लग जाता है, तो उसको उसी के रिलेटेड एड्स वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर अगर हम सोशल मीडिया को एक साइड पे रखते हैं और हम देखते हैं कि कोई ना कोई लोग जो है ऐसी वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन वगैरह डाल देते हैं, तो वो कोई ना कोई बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं कि हाँ हमारे पास आओ, हम आपको इस चीज के रिलेटेड डिस्काउंट देंगे, आप हमारे पास इस चीज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप कॉल्स आती हैं, आप इस चीज के शेयर वगैरह बाय कर लो। सो दीज आर द थिंग्स जो हम फेस करते हैं। लॉ इम्प्लीकेशंस में हम बस इतना ही देखेंगे कि हमें कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हम ऐसी चीजों और ऐसे स्कैम से अवॉइड कर पाए अपने आप को, और हम बचे रहें, अपनी आगे फर्दर लाइफ को सेफ एंड सिक्योर रख सकें। इसके लिए हम एक इंटरव्यू लेंगे एक पर्सन से जिसको इस चीज के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, जो हमें हेल्प करेगा कि हम आगे अपने आप को एक अच्छा फ्यूचर डेवलप करें। आज हमारे साथ हैं कृष खत्री, जो सीसीईटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बेसिकली जैसे हम कोई डिसीजन मतलब कोई एक्शन एक कोर्स ऑफ टाइम पे कर लिया जिसका रिजल्ट या आउटकम हमारे फ्यूचर बिहेवियर को मैनिपुलेट करने का पोटेंशियल रखता है, वो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में हम ऐसा मान सकते हैं जैसे कोई इन्वायरमेंटल पॉलिसीज चल लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट रिन्यूएबल सोर्सेज ऐड कर रही है, फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स। अब इसका जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन रिजल्ट आएगा वो है कि नई जॉब्स क्रिएट होंगी, जो कार्बन एमिशन है वो कम हो जाएंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट में हम हेल्थ को ले सकते हैं, जैसे आजकल लोग अवॉइड करते हैं कि ऐसे हेल्दी डाइट या फिर एक्सरसाइज के लिए वो चीज क्रोनिक डिजीजेस का रिस्क जो होता है वो बढ़ सकता है, जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज वगैरह। और जैसे नेगेटिव में एक और एग्जांपल होता है जो काफी कॉमन है, जो पुअर साइबर सिक्योरिटी की वजह से हमारा डेटा ब्रीचेस बहुत फ्रीक्वेंट हो गए, उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे जो कंज्यूमर का ट्रस्ट है उनकी कंपनी पे वो काफी कम हो रहा है, और इसी की वजह से जो गवर्नमेंट नई पॉलिसीज ऐड कर रही है, नई कम्युनिटीज ऐड कर रही है, वो काफी स्ट्रिक्ट है, तो लोगों को बेसिकली स्ट्रिक्ट लेते हैं। Okay, very well explained by you. So, if we precisely talk about privacy related issues, what are your point of view on that? प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज बहुत कॉमन है आजकल। जैसे हम फोन में भी हमारे काफी बार ऑप्शन आता है कि वो डेटा कलेक्शन के लिए पूछता है, और हम जाने जाने उसको अलाउ नहीं कर देते। तो डेटा कलेक्शन में काफी चीजें आ जाती है, वो हमारा फोन नंबर ले लेता है, ईमेल एड्रेस ले लेता है, नाम पता सब। अब कई कई बार फोन में बैंक की डिटेल भी होगी, यूजुअली काफी सिक्योर होता है, बट यू नेवर नो। अब हैकर्स होते हैं, वो फाइनेंशियल थ्रेफ्ट हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इस तरह से आपको। अब
जैसे नाम या ईमेल उठा रही है डेटा कलेक्शन में, तो आप स्पैम कॉल आ सकती है कहीं बैंक से रिलेटेड कि ये कर लो वो कर लो। ये काफी नेगेटिव चीज है इस चीज की। और एक और चीज है, जैसे वेबसाइट में कुकीज होते हैं, वो कुकीज के लिए आंसर करता है। अब कुकीज में भी हम वेबसाइट, हमें थोड़ी पता है कि हमने उस वेबसाइट में क्या डालना है। जैसे कई बार आप फोन नंबर डाल देते हो, ईमेल एड्रेस डाल देते हो, या फिर अपनी बैंक की डिटेल्स भी डाल देते हो इन सम केसेस। तो वो भी दिक्कत दे सकता है। वो बेसिकली हैकर या फिर इनके पास पहुंच सकता है, और वो आपको कॉल करके कुछ ओटीपी वगैरह मांग सकते हैं। वो हो सकता है आप जाने अनजाने में दे दो अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, एंड वो फिर फाइनेंशियल लॉसेस में रिजल्ट कर सकते हैं। तो काफी नेगेटिव है। आपको भी एक्सपीरियंस है इस चीज के लिए? या मतलब वेबसाइट पे मैंने भी ऐसे कुकीज को बिना पढ़े वैसे एक्सेप्ट कर लिया था, एंड मुझे अपना नंबर या ईमेल देके मैं, मेरे को स्पैम आते, कॉल्स आती है बेसिकली, ये पर्सनल लोन ये वो, मेरे को नहीं पता वो कहाँ से आती है, बट हाँ काफी दिक्कत है। अच्छा, तो आप कोई हमारी ऑडियंस को एडवाइस देना चाहोगे कि जिससे वो इन चीजों से बच पाए जो आप फेस कर रहे हो आजकल में? एडवाइस यही रहेगी कि जैसे अपडेटेड रहो, साइबर सिक्योरिटी में जो भी ऐसे नए वायरसेस आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उसके रिलेटेड अपडेटेड रहो। और जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, उसमें यूनिक पासवर्ड यूज करो। जैसे मेरा नाम क्रिश है, ऐसे नहीं कि क्रिश 1 2 3, कुछ यूनिक, जैसे उसमें स्पेशल सिंबल यूज करो, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सब यूज करो। एक्चुअली थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, उसको ब्रीच करना काफी मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, वो इनेबल करो व्हाट्सएप में भी, हर जगह जहाँ भी वो है उसको इनेबल करो। उससे आपका जो डेटा होता है वो काफी सिक्योर हो जाता है। और एक और चीज आप कर सकते हो, जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट में जो मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी तरफ ना जाओ। और जो वेबसाइट होती है जो ऐसे हाई पावर कर देती है रैंडमली, कोशिश करना है कि उनको ध्यान से करना, एंड फिर बाद में क्लिक मत करें, नहीं तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है एंड वो फिर फोन खुद ही खराब है। सो दैट्स इट। So thanks a lot for sharing. Thanks for watching. Stay alert, stay secure, and keep your private life private. Cheen tabak dum dum.